बता देता हूँ। तो अनंत आश्रम यूनिवर्सिटी का प्रयास जब से इसकी स्थापना हुई है तब से ये है कि पढ़ाई के साथ प्रभाव, तो हमारे छात्र और जो हमारे फैकल्टी पढ़ा रहे हैं और सीख रहे हैं, so in the process of learning how you make impact, I mean you are, of course there is so much that you are learning, but are you making an impact? So that's the best way to learn. और उसके लिए पढ़ने के साथ प्रभाव के लिए आवश्यक है कि आप अपने समाज को जानिए, नो योर कम्युनिटी, क्योंकि बचपन से ही स्कूलों से ही हमारे जो बच्चे रहते हैं उनको रोका जाता है कि इधर नहीं जाओ, उधर नहीं जाओ, इनसे नहीं मिलो. So kids are prevented, since the time they are growing up in families, to not go out, not meet, not talk, not play your guitar, not play sport, just focus on study. So ऐसी अवस्था में उनका वो जो बड़े होते हैं तो दुनिया की समझ उनकी बहुत सीमित होती है, क्योंकि उन्होंने केवल अपने परिवेश को देखा है, अपने परिवार को देखा है, अपने पड़ोस की जो परिस्थिति है उसको देखा और समझते हैं कि दुनिया वही. तो इसलिए जरूरी हो जाता है so that what they grow up with is a very limited understanding of the community, of the society, of the world, and that is a understanding that they bring with them when they come to a university like this, or when they take up design, or when they take up sciences or commerce or whatever. They don't understand the world. तो शुरू से ही हमारा प्रयास ये रहा है कि ऐसे छात्र, ऐसे नवयुवक नवयुवतियां जो यहाँ आते हैं उनका पहले परिचय हो समाज से. Go out, see the community, experience the community, understand diversity, understand how many different contexts are there. Just because you have grown up well fed and well protected doesn't mean that everyone is well fed and well protected. Just because you are born a male doesn't mean that everyone has the same privileges. Understand, the range of challenges. Bring out the human in you, right? And it's only the human who can use empathy and understand a problem. If I've never experienced hunger in my life, then I don't know what hunger is. And if you tell me I'm hungry, I will not understand. Right? I can say, oh, that's bad, but I don't really understand the pain or the, feelings that you have. Somebody who's been shot in a war, I can say that's bad, but I don't really understand the extent of the experience. So how do you bring out the human? You have to go through, a young person has to go through those experiences, and that happens, that's the experiential part. अनुभव का जो अंश है पढ़ाई में वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि स्कूलों में नहीं रहता. So that is what we introduce our students to. पहली चीज है समाज में जाओ, वहाँ समाज की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको समझो. जो ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम में आएगा, आपका पुराना ट्रेडिशन, परंपरा, हाउ इट कंजर्व्स, हाउ इट वाज सस्टेनेबल, उसकी कमजोरियों को भी समझो, परेशानियों को भी समझो, एंड देन कम बैक एंड यूज योर ब्रेन, योर रिसर्च, योर आइडिएशन, द प्रोसेस ऑफ आइडिएशन टू डिफाइन द प्रॉब्लम. कि क्या प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, and then work on it to solve it. Come up with a hypothesis, experiment on it, and then solve it. This is the process of design. This is what we try to do here. And while the students are learning, the students are also working on identifying these problems and trying to solve these problems. So they get very close to the problems. They become more human, they become more creative, they use more science, technology and other perspectives of knowledge and experiences to handle these problems. So this is what we are doing. The great opportunity that we have now, and this is what today has been about, is to work together with another very impactful institution
दे स्टार्टेड आउट इन 1838, इनकी स्थापना आप कर सकते हैं जब अमेरिका में कॉन्फेडरेसी नॉर्थ साउथ में जब युद्ध हो रहा था स्लेवरी को लेकर, और वो जो लड़ाई हुई थी उसमें इनकी शुरुआत हुई थी 1838 में, 1838 एक अस्पताल बनाकर, और वहां से तो वो भी हो गया समाज की भावना को लेकर के, द ह्यूमन इंडियन, द कमिटमेंट टू सर्व सोसाइटी. So that is when Virginia Commonwealth University started. और ये हेल्थ में, डिजाइन में, प्रोडक्ट इनोवेशन में तरह तरह की चीजें बना करके दुनिया को, समाज के जीवन को कैसे सुधारा जा सकता है, कमिटमेंट वही उनकी. आर्ट एंड कल्चर, विजुअल आर्ट्स, शिफ्ट लैब्स, दा विंची सेंटर, जो कि क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग दोनों का इंटीग्रेशन है. क्योंकि आज की पढ़ाई में एनईपी भी यही करता है ना कि केवल रट्टा मार के मत जाइए, नो मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग से काफी डैमेज हो गया है. सो नाउ वी नीड टू हैव अ काइंड ऑफ एजुकेशन दैट इज दैट privileges creativity, curiosity, your ability to imagine, your ability to have many interests, not just one. So support all these interests. Integrate these interests, harmonize these interests with critical thinking and critical practice. You bring in science, bring in technology, bring in सोशियोलॉजी, जितनी भी ज्ञान के जितने स्रोत हैं सबको जोड़िए, समस्या को समझिए और उसको सुलझाइए. दिस इज व्हाट वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी हैज बीन डूइंग. मोर देन 100 years old. We are very fortunate, honored and privileged to be getting into partnership with जो अमेरिका की टॉप 50 यूनिवर्सिटीज में है, उनके साथ ये जो पार्टनरशिप हमारी हुई है, ये इसका उद्देश्य है हमारे छात्रों, साथ ही साथ शिक्षकों के लिए भी एक ऐसा अवसर मिले जिससे इनोवेशन और समस्याएं जो हैं उनको सुलझाने में हमारे छात्र आगे बढ़ें और हमारे शिक्षक भी आगे बढ़ें. तो ये वर्जीनिया कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी जो है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, डिज़ाइन के क्षेत्र में, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अमेरिका में काफ़ी आगे है और काफ़ी इसने प्रभाव डाला है. और उनके अंदर ये काफ़ी एक्साइटमेंट है, वो काफ़ी उत्साहित हैं कि उनको ये अवसर मिल रहा है अनंत के साथ मिलकर काम करने का, क्योंकि अनंत ने डिजाइन का उपयोग प्रभाव के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से किया है. कोविड का समय हो या कच्छ में जो काम करते हैं मजदूर सॉल्ट पेन्स में, उनके लिए रिहायशी घर बनाने का हो, तो समाज की समस्याओं को सुलझाने में हमारे छात्र डिज़ाइन का उपयोग बहुत प्रभावशाली रूप से करते हैं. और ये बात अब अमेरिका में भी काफ़ी संस्थानों में शिक्षकों को और छात्रों को पता है, और यही कारण है कि हमारे काफ़ी पार्टनरशिप हैं. हम काफ़ी विश्वविद्यालयों के साथ, अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ, अफ्रीकी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं. तो पहली चीज़ तो फ़ायदा ये होगा कि वो पुराना जो एक दृष्टिकोण था कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्थान अकेले काफ़ी है, वो बात अब दूर हो गई है. पैंडेमिक कोविड में हमने देखा कि जब ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता जब आई कि हमको वैक्सीन बनाना है, और वैक्सीन बनाने का समय आपको मिनिमम जो हुआ करता था वो 10-12 साल होता था, मगर उसको हमने 1 साल में दुनिया ने बना दिया. और ये तभी संभव हुआ जब अनेकों संस्थान अपने अपने तरीके से खोज करते करते और मिलकर उन्होंने बहुत ही कम समय में ये सॉल्यूशन निकाल लिया. और वही पैटर्न है, वही तरीका है जो हम लोगों ने भी अख्तियार बनाया है कि मिलकर काम करेंगे तो अभी जो हमारी विश्व में समस्याएं हैं उनका निराकरण हो सकता है. अफ्रीका में लोग कैसे सोच रहे हैं, वहाँ के जो बहुत ही प्रतिभाशाली क्रिएटिव
स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं वो कैसे सोच रहे हैं, बांग्लादेश में कैसे समस्याओं से लोग सोच करके उसका सोल्यूशन निकाल रहे हैं। तो दुनिया भर में जहां भी समस्याएं हैं, समस्याएं अब लगभग एक हो गई। पानी नहीं है, गर्मी बढ़ गई, समुद्र जल बढ़ गया, तूफान आ गया। तो अब सबको मिलकर काम करना है और उसी उद्देश्य से हम लोग ये पार्टनरशिप को बहुत ही सकारात्मक तरीके से देख रहे हैं VCU के साथ। इससे छात्रों को फायदा ये होगा कि उनका जो इंटरनेशनल सेंटर है डिजाइन लर्निंग का, उसमें हमारे छात्र दुनिया भर के डिजाइन स्टूडेंट्स के छात्रों की तरह ही हिस्सा ले सकेंगे, अपने इनोवेशंस को का प्रदर्शन कर सकेंगे, अपने इनोवेशंस को आगे बढ़ा सकेंगे बाकी दुनिया की मदद से, जो भी उनके काम से प्रभावित होते हैं। रिसर्च में उनको काफी मदद मिलेगी, जैसे VCU के जो छात्र होंगे और रिसर्चर्स होंगे उनको यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके उनको मदद मिलेगी। तो ज्ञान अब वन वे, इट्स नॉट ऑलवेज टॉप डाउन कि हमको दूसरे जो डेवलप संसार में जो लोग हैं वही ज्ञान देंगे। अब ऐसी बात नहीं रही। अब वो भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ आकर हम क्या सीखेंगे। तो अभी वहाँ यही है, यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी जो जिसके साथ हमारे की पार्टनरशिप है, उसके मास्टर्स के स्टूडेंट, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं जो हम लोग बैचलर्स में पढ़ते हैं, बैचलर BTech में जो पढ़ते हैं। तो वो कहते हैं कि अच्छा इसमें आपने काफी काम किया है। ये विज्ञान का भी जो होता है ना कि इसमें आपने काफी कर लिया, हम यहाँ पर हैं मगर हम आपसे शेयर करेंगे अपनी जानकारी। तो एक वैसी ही दुनिया है डिजाइन की, क्योंकि इसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इसका उद्देश्य दुनिया बचाना है। और अभी एक ऐसी परिस्थिति है कि काफी समस्याएं हैं हमारे सामने, और वो डिजाइन हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, लिबरल आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, इन सब के समन्वय ही से ये समस्याएं दूर हो सकती हैं। तो बहुत फायदा होगा छात्रों का, शिक्षकों का, शोधकर्ताओं का और समाज का। ओके सर।